Hello students, all of you very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from Amal Convent Group of Schools. So students, from today we are going to start your moments, and in moments we are taking the first chapter, that is the Lost Child. Lost Child, as we all know, that it is written by Mulk Raj Anand, and whenever the name of Mulk Raj Anand comes in our mind, Indian English writers starts coming in our mind. So let us try to have insight about the author, that is Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand, who was born on 12 December 1905 and died on 28 September 2004, was an Indian writer in English, notable for his depiction of the lives of the poorer castes in traditional Indian society. One of the pioneers of Indo-Anglian fiction, he, together with R.K. Narayan, Ahmad Ali and Raja Rao, was one of the first India-based writers in English to gain an international leadership. Anand is admired for his novels and short stories, which have acquired the status of classics of modern Indian English literature. They are noted for their perceptive insight into the lives of the oppressed and for their analysis of impoverishment, exploitation, and misfortune. He became known for his protest novel Untouchable, that was published in 1935, followed by other works on the Indian poor such as Coolie in 1936 and Two Leaves and a Bud in 1937. He is also noted for being among the first writers to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English, and was the recipient of the civilian honor of the Padma Bhushan. So this was something about the writer, that is Mulk Raj Anand. Now about the story Lost Child. Lost Child. This story makes a deep study of child psychology. The genuine insight into the working of the child's mind leaves a deep impact on the minds of the readers. We come to know the life of a child. Young children get attracted by little things around them and often press their parents with demands to buy those things. ये जो स्टोरी है ना, ये चाइल्ड साइकोलॉजी की डीप स्टडी को दिखाती है. एक जेन्युइन इंसाइट होता है चाइल्ड के माइंड की वर्किंग का. हम सबको पता है कि बच्चे कैसा बिहेव करते हैं. छोटे बच्चे अगर कहीं बाहर निकलते हैं, उनको जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और अपने पेरेंट्स को से डिमांड करते हैं, उन पर प्रेस करते हैं कि उनको वो चीज़ चाहिए. ये एक जनरल इंसाइट है, जनरल वे है, जनरल साइकोलॉजी है यंग चिल्ड्रन की. और उसी जनरल साइकोलॉजी को डिपिक्ट करती हुई ये स्टोरी है. The Lost Child is the story of a small child who gets lost in a fair, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है. मेले में जाने के बाद रास्ते से ही उसको हर एक चीज़ जो भी रास्ते में दिखाई पड़ती है उस चीज़ को लेने की जिद करता है. ओके, और फिर पेरेंट्स उसको डांट देते हैं. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. जब वो मेले में पहुंचता है तो उसको ढेर सारी चीज़ें मिलती दिखाई पड़ती हैं, उनको उनकी जिद करता है,
लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स खरीदेंगे नहीं उसको, तो वो पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर उसके सामने राउंड अबाउट स्विंग दिखाई पड़ता है और उसमें वो इतना इंग्रोस हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसके पेरेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और वो राउंड अबाउट स्विंग को ही देखता रह जाता है और वहीं पे वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। He is lost in the fair. The story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. जो स्टोरी है वो बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ जो लव एंड अफेक्शन का बॉन्ड है ना, उसको हाईलाइट करती है। बिफोर लूजिंग देम he had been demanding different things like sweets, balloons, flowers, swings, etc. जब तक वो खोता नहीं है तब तक अपने पेरेंट्स से हर एक चीज़ की जिद करता है कि उसको बैलून्स चाहिए, उसको मिठाइयाँ चाहिए, उसको फ्लावर्स चाहिए, उसको स्विंग्स पे जाना है। बट वंस ही लूजेस देम ही इज पिक्ड अप बाय अ स्ट्रेंजर। जब वो खो जाता है, अकेले रोता रहता है, एक अजनबी भला इंसान कि उस भले इंसान की निगाह उस पर पड़ती है, वो उसको उठा लेता है। The stranger tries to quieten the child by offering him all these things that he had demanded from his parents. पता है, अभी तक वो जिन चीज़ों की जिद कर रहा था, वो हर एक चीज़ का ऑफर उसको ये अजनबी करता है। लेकिन ये बच्चा अब सब चीज़ रिफ्यूज कर देता है। इस बच्चे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो क्या? इसके पेरेंट्स। बट द चाइल्ड डज नॉट वांट देम एनीमोर, ही वांट्स हिज पेरेंट्स। ऑल द अदर थिंग्स आर important, all the other things are needed only if he is with his parents. After losing his parents, these all things loses its importance. So it's a very beautiful story by Mulk Raj Anand. Let us try to read it one by one, line by line, and try to enjoy. Now, paragraph 1, page number 1, paragraph 1. It was the festival of spring. From the wintry sets of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. So the story is set in the spring season. जो स्टोरी है वो स्प्रिंग सीजन में सेट है, एज द विंटर सीजन हैड जस्ट एंडेड। चूँकि अभी अभी जो है विंटर का सीजन अभी भी ख़त्म हुआ है। ऑल द पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेस, दे वर चीयरफुल एज द चिलिंग कोल्ड वेदर हैड एंडेड। सब के सब खुश रहता है क्योंकि जो है अभी अभी चिलिंग कोल्ड वेदर ख़त्म हुई है। और चूँकि वो सब बाहर हैं और उनके बाहर होने का एक कारण है, वो कारण है कि वो सब के सब एक मेले में जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू अ फेयर, एक मेले की तरफ जा रहे हैं। पीपल कन्वेड थ्रू डिफरेंट मोड्स, फूट, हॉर्सेस, बम्बू कार्स एंड बुलक कार्स। लोग अलग अलग साधनों से निकलते हैं, कुछ लोग पैदल निकलते हैं, सम वॉक्ड, कुछ लोग घोड़े पे बैठ के निकलते हैं, अदर सैट बीइंग हॉर्सेस पे, फिर कुछ लोग बम्बू एंड बुलक कार्ट्स पे निकलते हैं। मतलब जिसके पास जो भी साधन होता है वो वैसे ही निकल देता है। One little boy ran between his father's legs. एक लिटिल बॉय वॉज accompanied by his parents. वो एक छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा है।
He ran excitedly and often banged into his father's legs. He was full of life, excitement and laughter. Okay, वो एक्साइटमेंट के साथ अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा है और अक्सर अपने फादर के लेग्स के बीच में आ जाता है. He was full of life, excitement, laughter. तो वो बच्चा भी अपने पेरेंट के साथ जा रहा है. सो इन दिस वे नाउ नेक्स्ट पैरा. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by toys. Lag behind was left behind. Okay, the child was attracted by the toys which were displayed at the various stalls. रास्ते में जो दुकानें लगी हुई हैं उन पे जो टॉयज हैं उनकी ओर अक्सर वो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है, तो उनको देखने लगता है और उनको देखने के चक्कर में वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है. Okay, as he would be left behind, his parents would call him to come with them. और चूंकि वो पीछे आता है तो उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं. Okay, कि जल्दी आगे आओ. Now he hurried towards his parents, his feet obedient to their call. और जैसे ही the child was obedient and would walk towards them and being called, but his eyes would keep on looking at the toys that he wanted. वो जैसे ही अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनता है कि कम चाइल्ड कम, ही हरी टूवर्ड्स देम, वो उनकी ओर भागता है, लेकिन उसके पैर तो अपने पेरेंट्स की कॉल की तरफ जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें जो होती है ना वो अभी भी लाइन से लगे हुई दुकानों में जो खिलौने हैं उनकी ओर देखने लगता है. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. और जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स रुक करके उसका वेट कर रहे हैं, वो जैसे ही एज ही रीच देम ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिज़ायर टू बाय टॉय. जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है वो अपनी वो खिलौने खरीदने की इच्छा को दबा नहीं पाता. ओके, ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. ओके, दो he was familiar to the reaction that they would give. He knew that they would stare at him, indicating denial to buy him the toy. उसको पता है कि उसके पेरेंट्स अभी उसको एकदम कोल्ड वे में कोल्ड रिएक्शन देंगे घूरते हुए और उसके लिए खिलौना खरीदेंगे नहीं. फिर भी डिस्पाइट ऑफ दैट, ओके, द चाइल्ड न्यू द इमोशनलेस वे इन विच दे वुड स्टेयर. डिस्पाइट ऑफ दैट, उसके बाद भी उसने अपनी इच्छा जाहिर किया. क्या? आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीडेड, उसने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया, ओके, कि मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. नो, बोल तो दिया. ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिजायर एनी लॉन्गर. ही asked for the toy. The father's eyes grew red with anger. फादर की जो निगाहें हैं वो गुस्से से लाल हो गई. He looked at the child, okay, in his familiar tyrant way, अपने familiar tyrant's way में, cruel और oppressive ruler की तरह. He looked at the child just like a cruel ruler who was trying to oppress him. His mother, melted by the free spirit of the lady, was tender and giving her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" The mother became emotional due to the cheerful mood. अच्छा, माँ चूँकि थोड़ा सा इमोशनल आती है cheerful मूड के कारण. Lovingly she gave her finger to the child. वो बड़े प्यार से बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाती है, okay, to hold and guided him to the place. उसकी ओर उसको एक चीज दिखाती सामने. देखो बेटा देखो. She asked him to see what was in front of him. जो उसके सामने था वो उसको देखने के लिए कहती है. अच्छा, ये बच्चों की जो है बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है. अगर अभी तक वो किसी चीज़ के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन अभी उसके आगे बढ़ते हैं, उनको कोई दूसरी चीज़ दिखाई पड़ती है उससे अच्छी चीज़ है, तो उनका जो अटेंशन है उस चीज़ से हट करके दूसरी चीज़ पे हो जाता है. ये बच्चों का
जो है इस इट इज़ वेरी वेल नोन वे ऑफ द चिल्ड्रन. सो सामने क्या था, इट वॉज फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड. सामने खेत थे. ओके, देयर वॉज अ वास्ट फील्ड फुल ऑफ ब्राइट येलो कलर्ड मस्टर्ड फ्लावर्स. सामने क्या था, सामने जो है पीले रंग के मस्टर्ड के फ्लावर्स वाले, माने मस्टर्ड जो सरसों होती है, सरसों के खेत थे, उनमें पीले पीले फूल निकले हुए थे. उनकी तरफ दिखाती है अपने बच्चे को कि बेटा देखो सामने क्या है. ओके, इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक melting gold as it swept across miles and miles of even hand. Okay, so they seemed like flowing streams of gold and wide spread. वो सामने लग रहा था कि मानो जो है पूरा सोना गोल्ड जो है मेल्ट कर दिया गया और मीलों मील तक एक तरफ से पूरे एरिया में सोना जो है स्प्रेड कर दिया गया है. ओके, सो अ वेरी ब्यूटीफुल सिमिली हैज़ बीन यूज्ड बाय मुल्कराज आनंद. ये उनका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बहुत ही अच्छा तरीका है. आप इनकी ये स्टाइल मुल्कराज आनंद जी की हर जगह पाएंगे जहाँ पर भी इनकी रैपिंग राइटिंग है. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई in search of sweetness from the flowers. So a group of dragonflies, black bees and butterflies buzzed around them. जो सरसों के फूल थे उनके ऊपर ड्रैगन फ्लाइज, ब्लैक बीज, बटरफ्लाइज, ये सब के सब वहाँ पे उन फूलों के ऊपर बजिंग कर रहे थे. और क्योंकि वो वहाँ पे क्या करते हैं, सरसों के फूलों से नेक्टर सक करते हैं. ओके, सकिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. सो जब बच्चे ने उनकी ओर देखा, द चाइल्ड फॉलोड देम इन सर्च ऑफ इन द एयर विद हिज गेज. अब बच्चे का फुल अटेंशन अभी तक टॉयज पे था, अब उसका अटेंशन टॉयज से हट करके कहाँ आ गया, फ्लाइज पे आ गया, बटरफ्लाइज पे आ गया, ड्रैगन फ्लाइज पे आ गया, ब्लैक बी पे आ गया. ओके, इन सब की अब बच्चा क्या करता है, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर. Okay, when one of them sat somewhere, he tried to catch them. जैसे ही वो उनको देखता कि कहीं बच्चा वो कहीं बैठ गई कोई बटरफ्लाई, वो उनकी ओर दौड़ पड़ता, क्या करने, उनको पकड़ने के लिए. So when one of them the child looked at them as they flew around. जब वो इधर उधर जो है फ्लाई कर रही थी तो बच्चा उनको देख रहा था. Till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. जैसे ही उसको अपने पंख बंद करती और वो कहीं बैठती, बच्चा उनको पकड़ने का प्रयास करता. But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. अच्छा, बटरफ्लाई सेंस कर लेती हैं कि कोई उनको पकड़ने के लिए आ रहा है, तो जैसे ही बच्चा उनको पकड़ने के लिए उनके पास पहुंचता है, वो तुरंत अपने विंग्स को फ्लैप करना शुरू करती हैं और वो वहाँ से उड़ जाती हैं. When his mother gave a cautionly call, "Come child, come onto the footpath." So he tried to catch them, but the teeny fishes would fly away. The next instant, the mother called out to him as they started walking down the footpath. चूँकि उनको पकड़ने के लिए फुटपाथ के नीचे जा चुका होता है, तो मदर उसको कॉल करती है, बेटा आ जाओ, फुटपाथ पे आओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, even left behind, attracted by the live little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Now, child ran towards his parents. जैसे ही वो जो है उसके पेरेंट्स उसको बुलाते, बच्चा भागता हुआ उनकी ओर आता. He walked next to them. वो अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चलता. And walked abreast, okay, of them for a while. कुछ देर चलता, लेकिन फिर however soon left behind, just तुरंत ही
थोड़ी देर में वो फिर से पीछे छूट जाता। ओके, क्यों? क्योंकि ही गेट्स इट अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। कई इंसेक्ट्स और वर्म्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, जो कि ठंडी के बाद अभी थोड़ा सा वार्म सनशाइन आया है, तो ये कीड़े मकोड़े भी जो है फुटपाथ पे आ जाते हैं। बस उनको देखने लगता है वो, और बस उनमें खो जाता है। फिर से वो अपने पेरेंट्स से, ही इज लैग बिहाइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स फिर से आगे बढ़ जाते हैं और वो पीछे छूट जाता है। फिर उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम साइड ऑफ द ग्रुप। अभी उनके पेरेंट्स कहाँ पहुँच चुके होते हैं? दे यूज टू हैव रीच्ड इनटू अ ग्रुप। अभी सामने एक ग्रुप है, और ग्रुप क्या होता है? अ स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज जो होते हैं। अभी उसके पेरेंट्स वहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो चूँकि वहाँ पहुँच चुके हैं, और where they had seated themselves on the edge of a well, and in that group there is a well. So on the edge of the well they both have seated to wait for the child। बच्चे का वेट करते हुए वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। वहाँ से बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। एंड एज सुन एज ही हियर्स, तुरंत अभी जो लिटिल इंसेक्ट्स और उनकी ओर उसका ध्यान अट्रैक्ट हुआ है, फिर वहाँ से भागता है अपने पेरेंट्स के पास। He ran towards them। वो अपने पेरेंट्स की ओर भाग चलता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands। अच्छा, as soon as the parents called him, they sat next to a well under the shady trees। The child once again ran and joined his parents। A shower of young flowers। As the child entered the shady forested area, he was welcomed by a shower of flowers। जैसे ही बच्चा जो है वो ग्रुप में पहुंचता है, जैसे ही ग्रुप में एंटर करता है, उसके ऊपर जो है फ्लावर्स का एक शावर होता है। आई मीन जो पेड़ पौधे हैं उनके जो फ्लावर्स हैं वो उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। एंड एज ही looks the flowers, forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands। अब फिर से अपने पेरेंट्स को भूल गया, और वो जुट गया अपने हाथों में जो है पेटल्स, फ्लावर्स के जो पेटल्स जो रेन कर रहे थे उनको इकट्ठा करने में। बट लो, he heard the cooing of doves and Ruwa ran towards his parents shouting। अच्छा, तभी जो है जस्ट देन ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स। डव एक पक्षी होता है, वो उस पक्षी की कूइंग की आवाज़ सुनता है, और उस पक्षी की कूइंग की आवाज़ सुन करके एक्साइट हो जाता है। एंड ही बिकम्स एक्साइटेड, और भागता है अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाते हुए, द डब। अब वो डब आई मीन वो पक्षी थी, उसको बताने के लिए अपने पेरेंट्स के पास भागता है, और इस दौरान वो भूल जाता है कि उसके हाथ में जो है क्या है, उसके हाथ में फ्लावर्स के पेटल्स है, भूल गया वो, ठीक है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। उसके हाथों से वो फूल के जो पेटल्स हैं वो गिर पड़ते हैं। सो ये चाइल्ड का बहुत ही जो है सुंदर सी साइकोलॉजी ऑथर ने, आई मीन राइटर ने एक्सप्रेस करने का प्रयास किया यहाँ पे, ठीक है, कि वो उसके सामने जैसे ही एक दूसरी चीज़ आती है वो पिछली चीज़ को भूल जाता है। ही फॉरगेट्स। अभी जो प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट को एंजॉय करता है। छोटा जो बच्चा होता है वो ही एंजॉयज द प्रेजेंट वाली, ओके। वो जो है फूल को भूल के ही स्टार्टेड चेजिंग द बर्ड्स, एंड इन द process the petals fell from his hands। This shows that as the child got attracted towards the next thing, he forgot what he had been doing earlier। जैसे ही वो एक चीज़ के लिए अट्रैक्ट होता है, वो भूल जाता है कि अभी तक वो क्या कर रहा था। So students,
In this way we have done up to here in this part. We shall continue chapter in the next class. Thank you. Have a nice day.